Great morning, students. How are you? Welcome in accountancy class. And you are the students of class 11. I hope you are safe and healthy at your home. So, in continued chapter Basic Accounting Terms, today we start a new basic accounting term, that is discount. You listen this word before. आपने इस वर्ड के बारे में पहले भी सुना होगा, डिस्काउंट. डिस्काउंट इज अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय सेलर टू द बायर. जब सेलर जो है बायर को गुड्स परचेज करने के लिए कुछ रिबेट एंड अलाउंस पे करता है फॉर टू promote the sale and promote the payment to increase his business, that is considered discount. And it is discount is two types. First of all, trade discount. Number two, cash discount. And trade discount is given by seller a fixed percentage on the list price. List price means which is written on the box of the product or on the face of the product, or catalog price. Catalog price means price list. When you go to the market for shopping, shopkeeper give you some pages to check the price, that is called catalog price. सेलर या मैन्युफैक्चरर एक फिक्स परसेंटेज के बेस पर, फिक्स परसेंटेज जो है वो कैटलॉग प्राइस पर डिस्काउंट दे देता है, और इस डिस्काउंट को वो इनवॉइस या कैश मीमो. इनवॉइस होता है व्हेन यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट shopkeeper give you invoice, and when you purchase the goods on cash, then he and she will provide you cash memo. तो वो जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो उसमें से डिडक्ट कर देता है, माइनस कर देता है. किस लिए पे करता है? ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू प्रमोट सेल. अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए सेलर जो है फिक्स परसेंटेज पर मैन्युफैक्चरर और सेलर रिटेलर को पे करता है. एंड दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर recorded in the books of account. ये डिस्काउंट हमारी अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती. सेकंड है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज गिवन अलाउड टू द कस्टमर. शॉपकीपर अलाउड टू द कस्टमर टू मेकिंग द पेमेंट अर्लियर, बिकॉज sometime purchaser purchase the goods on credit and future is uncertain, so that person seller give to purchaser. If he and she make the payment on the spot within week, it is that depend on the seller situation, then he gives some discount to deduct some money. So cash discount is allowed to the customer for making promote payment. And next is voucher. Voucher is a document. एक डॉक्यूमेंट होता है, एविडेंस है, which provides or authorization to pay on the basis of business transaction. हमने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की, फॉर एग्जाम्पल हमने एक शॉपकीपर से, हमने होलसेलर से गुड्स परचेज की, और गुड्स परचेज करने के बाद उसने हमारे को क्या किया, एक इनवॉइस पे दे दिया. एंड इनवॉइस देने के बाद वी विल पे अ डॉक्यूमेंट विच शो द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड इन दिस वाउचर it is clearly written which account is debited and which account is credited. And the books of accounts, first of all, transaction will be recorded in the books of account with the help of voucher.
नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये तो आपने सुना ही है। जीएसटी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी फ्रॉम 2017। ये जीएसटी, इससे पहले जो था गवर्नमेंट बहुत से टैक्सेस हमारे से चार्ज करती है। गवर्नमेंट की सोर्स क्या है इनकम का, पब्लिक से टैक्सेस जो है वो चार्ज करती है। तो मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्नमेंट ने एक सिंगल टैक्स में मर्ज कर दिया, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दैट मीन्स व्हेन वी परचेज द goods or services from any organization, then some amount paid extra called GST, and seller collected the GST from the purchaser, and after that it is deposited to the government. Next है bad debts, very important terms. Bad debts, first of all you understand the debtors. Debtors are those person from to whom we sold goods on credit. डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम गुड्स जो है क्रेडिट पर सेल करते हैं। अब क्रेडिट पर जब हम सेल करते हैं तो पेमेंट फ्यूचर में मिलनी है, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन सो दैट इन फ्यूचर व्हेन some debtors are not paying money, some debtors are irrecoverable, some debtors monies are not realizable, that is called bad debts. It is the loss of the business और डेटर ने पेमेंट नहीं की तो क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, और वो लॉस बिजनेस का लॉस है, और उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स हैं हमारे पास, कैटल्स हैं, हॉर्सेस, कैट, डॉग। वी यूज दिस कैटल एंड डोमेस्टिक एनिमल टू रन आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए जब इन एनिमल्स की हेल्प लेते हैं, दैट मीन्स दे आर एसेट्स एंड दे आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने ऑफिस को ऑब्जर्व करने के लिए एक मंकी हायर कर लिया। वो मंकी मेरे ऑफिस के बाहर बैठा रहता है एंड ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट मंकी इज लाइव स्टॉक। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स we will deposited some money in another security but purpose it to retain earning. हमने अपनी मनी को बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या किसी कंपनी के शेयर्स में, या किसी कंपनी के डिवेंचर को परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिया है, पे कर दिया है, अपने फंड को डिप्लॉयमेंट कर दिया है। किस पर्पज से? हमारा मेन मोटिव क्या है? टू अर्निंग अ रिटर्न। हमें उससे कोई रिटर्न मिलेगी। बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर और डिवेंचर परचेज करेंगे तो शेयर से हमें डिविडेंड मिलेगा, और डिवेंचर से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हमारा मेन पर्पस क्या होगा? टू अर्न या इनकम, अर्निंग अ रिटर्न, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। सो I hope you understand this basic accounting terms. Thank you. Have a nice day.